دیکھیں چائنا میں پاکستان کے جب پرائم منسٹر صاحب گئے تھے چائنا تو وہاں پر ایک میٹنگ تھی گریننگ آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اوپر. ادھر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اپنے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو ایک چائنا پاکستان گرین اکنامک کوریڈور بنانا چاہتے ہیں. گراس پاکستان میں تو اکثر جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہ مختلف جو چینی روایتی ادویات ہیں ان میں بھی استعمال کرتے ہیں، خوبصورتی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ML1 ریلوے منصوبے کی مرمت سے کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ ناظرین محترم السلام علیکم. پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نسرین اور ہمارے پاکستانی میزبان ڈاکٹر معاذ اعوان صاحب بھی براہ راست موجود ہیں. کووڈ کے بعد گرین معاشی بحالی کا تصور عالمی اتفاق رائے بن گیا ہے. چین نے کاربن نیوٹرل کا ہدف طے کر لیا ہے اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے کنارے ممالک نے بھی اپنے ممالک کے توانائی کے منصوبوں کا دوبارہ جائزہ لیا ہے. پاکستان کو توانائی اور ماحولیاتی تحفظ کے مابین کیسے توازن پیدا کرنا چاہیے؟ گرین معیشت کے میدان میں چین پاکستان کے لیے کیا لا سکتا ہے؟ ہماری رپورٹ دیکھیے. پاکستان کی نصف سے زیادہ توانائی کا حصول حیاتیاتی ایندھن ہے. صاف اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو فروغ دینے کی فوری ضرورت ہے. پاکستان کے صاف بجلی پیدا کرنے کے ہدف کے مطابق قابل تجدید توانائی سے پیدا ہونے والی بجلی کا تناسب 2025 تک 25% اور 2030 تک 30% تک ہو جائے گا. دیکھیں ہمارا اس میں رینیوبل انرجی میں ہم ہائیڈرو پہ سب سے زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ہائیڈرو پاور پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سولر پوٹینشیل بہت ہے، ونڈ کا پوٹینشیل بہت ہے. تو ان سب کو انشاءاللہ ہم فوکس کر کے اور انشاءاللہ پاکستان یہ اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرے گا. پاکستان میں ماحول کو بہتر بنانے اور کاربن غیر جانبداری کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک اہم اقدام شجرکاری مہم ہے. سملرلی اسی طرح جنگل کا تحفظ اور سونامی پروجیکٹ کے تحت 10 ارب درخت لگانے کا کام ایک عظیم اقدام ہے. ہم نے سنا ہے کہ زیادہ تر دیگر ممالک پاکستان سے سبق سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ 10 ارب درخت لگانے کے سونامی پروجیکٹ کے اس کامیاب ماڈل کو اپنا رہے ہیں، اور اگر پاکستان نے یہ ہدف حاصل کر لیا تو ہمارا کاربن کا ماحولیاتی اثر بہت کم ہوگا. 2060 تک چین کی کاربن غیر جانبداری کے حصول کے عزم مستقبل میں چین کی توانائی کی سرمایہ کاری کی سمت کی نشاندہی کرتا ہے. پاکستان سی پیک کے ذریعے صاف ستھری ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بھی امید کرتا ہے. دیکھیں چائنا میں پاکستان کے جب پرائم منسٹر صاحب گئے تھے چائنا تو وہاں پر ایک میٹنگ تھی گریننگ آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اوپر. تو ادھر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اپنے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو ایک چائنا پاکستان گرین اکنامک کوریڈور بنانا چاہتے ہیں. موجودہ توانائی کے ڈھانچے پر غور کرتے ہوئے حیاتیاتی توانائی کے استعمال کو روکنے سے توانائی کا سنگین بحران پیدا ہوگا. بجلی کی طلب اور ماحولیاتی تحفظ کے مابین کیسے توازن برقرار رکھا جائے؟ شمالی چین کے تیانجن میں ہواننگ گروپ نے کوئلے سے پیدا ہونے والی بجلی میں صفر کاربن کے اخراج کو حاصل کرنے کے لیے انٹیگریٹڈ گیسیفیکیشن کمبائنڈ سائیکل IGCC ٹیکنالوجی اپنائی ہے. IGCC ٹیکنالوجی ایک اعلیٰ کارکردگی کے حامل کوئلے سے پیدا ہونے والی بجلی کے حصول کی ٹیکنالوجی ہے جو کوئلے، کیمیائی صنعت اور انٹیگریٹڈ سائیکل کی بجلی کی پیداوار کو یکجا کرتی ہے. اس سے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کی کارکردگی میں بہتری واقع ہوتی ہے اور اس سے خارج ہونے والے آلودہ مادے قدرتی گیس کے معیار پر پورا اترتے ہیں. یہ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کی ایک ثابت شدہ اور تسلیم شدہ ٹیکنالوجی ہے جس میں مزید ترقی کے امکانات موجود ہیں. روایتی کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کی آلودگی کی سطح کے مقابلے میں IGCC کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ گیسیفیکیشن سے قبل کچھ آلودگیوں کو پہلے ہی ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن آکسائڈ کے نچلے درجے پر اخراج کو کنٹرول کیا جا سکے. IGCC میں گیسیفیکیشن جلانے سے پہلے خاص اور دباؤ والے کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کرنے اور اس پر قابو پانے کی اجازت دیتی ہے. سنگ گیس کی صفائی میں بھاری ذرات کو دور کرنے کے لیے فلٹرز، باریک ذرات کو دور کرنے کے لیے صفائی کرنا اور مرکری یعنی پارا ہٹانے کے لیے ٹھوس جاذب شامل ہیں. اضافی طور پر ہائیڈروجن گیس ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے جسے جلانے سے کوئی آلودگی پیدا نہیں ہوتی. فی الحال چین میں IGCC ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور چین نے پاکستان میں توانائی کے سب سے بڑے منصوبوں پر کاربن کے اخراج میں کمی کی ہے.
ग्रीन बेल्ट एंड रोड को फ़रोग देने के लिए रहनुमा उसूल माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ तकाज़ों को आगे बढ़ाता है। उभरते हुए ग्लोबल एंटरप्राइज के तौर पर हमें पहले उन तकाज़ों को अमली जामा पहनाना चाहिए और अपने कारपोरेट इमेज को बरकरार रखना चाहिए। हमने बुनियादी तौर पर मुआहिदे की ज़रूरियात की बुनियाद पर पावर प्लांट के कोयले, पानी और राख के ट्रीटमेंट सिस्टम की तश्कील को बेहतर बनाया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि पूरे सिस्टम का डिज़ाइन फंक्शन हमारे बैरूनी मुआहिदे की ज़रूरियात को पूरा करता है। दर हकीकत हमारे मजमूई डिज़ाइन का हुज्म मुआहिदे की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है। माहौलियाती ख़तरे की तशख़ीस और इंतज़ाम के मामले में हम पहले से तशख़ीस और डिज़ाइन में ग्रीन हाउस गैस के अखराज में कमी और आलूदगी से बचाव जैसे अवामिल पर मुकम्मल गौर करते हैं और इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख़याल में इस मंसूबे से मकामी लोगों को मुतअद्दिद मुआशी और मुआशरती फ़वाइद हासिल हुए हैं। साफ तवानाई की सनत में बड़ी सलाहियत है। बेल्ट एंड रोड के साथ मुंसलिक ममालिक में चीन के काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे समरावर हो रहे हैं। सी पैक को ग्रीन सी पैक में तामीर करने के लिए फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन, विंड पावर, पन बिजली और दीगर काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे बनाए गए हैं और उन्हें ग्रिड से मुंसलिक किया जा रहा है, जिसने पाकिस्तान के तवानाई ढांचे की इस्लाह में एक बेश कारकर्दगी दिखाई है। आलमी बैंक ने बताया है कि पाकिस्तान में हयातियाती ईंधन से बिजली पैदा करने का मुसाबकती फ़ायदा नहीं है। 2032 से शमसी, हवा और पन बिजली की कुल नस्ब सलाहियत कोयले से पैदा होने वाली बिजली की फराहमी के खला को पूरी तरह से पुर कर सकती है। चीनी कंपनियां पाकिस्तान को हवा और शमसी मंसूबों की लागत को कम करने में मदद कर सकती हैं और इस तरह इसको मकामी अजाला कार्बन के मकसद को हासिल करने में मदद फराहम कर सकती है। अब चीन की हवा से पैदा होने वाली तवानाई की सलाहियत और फोटोवोल्टिक सलाहियत दुनिया को आगे ले जा रही है। पैदावारी सलाहियत में तोसी ने अखराजात को कम कर दिया है। चीन की क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी को बैरून मुल्क फ़रोग दिया जा सकता है। बेल्ट एंड रोड के साथ मुंसलिक ममालिक को मतरूक टेक्नोलॉजीज़ पर मबनी तवानाई के मंसूबों पर दानिस्ता तौर पर गौर करना चाहिए और कार्बन फ्री मुस्तकबिल की तामीर में तरक्की की सफ़ में शामिल होना चाहिए। तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान तवानाई के ढांचे में तब्दीली के ज़रिए ग्रीन तरक्की का हदफ हासिल कर लेगा। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो माहिरीन बराह रास्त मौजूद हैं। वो हैं डॉक्टर असफंदियार शहाब साहब, जो कि चीन की क्विलिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर चेंग शीजोंग साहब, जो कि चीन की साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। असफंदियार साहब, अगर पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल्स में साफ तवानाई का फ़रोग शामिल है, जो कि है, तो चीनी कंपनियां इस हवाले से क्या रोल प्ले कर सकती हैं? मेरे ख्याल में चीनी कंपनियां पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं इस मामले में। एक तो चीनी कंपनियां काफ़ी स्किल्ड है, उनके पास टेक्नोलॉजी है और रिसर्च बेस्ड टेक्नोलॉजी है। तो अगर वो एक पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट वो कर सकते हैं कि अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि चाइना इस फील्ड में बहुत आगे है। तो मेरे ख्याल में कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान को इस फील्ड में काफ़ी इंडिपेंडेंट कर सकती है और पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुफीद होगा। तो एक तो स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी मुफीद होगा और आगे पाकिस्तानी कंपनियां को वो ट्रेनिंग दे सकती है और फिर इन्हीं स्टूडेंट को इंडक्ट करके, तो एक ब्राइट फ्यूचर है मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए चीनी कंपनियों से स्किल लेके और टेक्नोलॉजी लेके। अगर फॉसिल तवानाई के इस्तेमाल पर काबू पाया जाए तो क्या इससे तवानाई के बहरान पर असर पड़ेगा, जिस पर पाकिस्तान ने हाल ही में काबू पाया है? पाकिस्तान में हालिया बरसों में पन बिजली बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। पन बिजली रिन्यूएबल एनर्जी यानी काबिल तजदीद तवानाई का सबसे अहम हिस्सा है। मेरे ख़याल में इस शोबे में पाकिस्तान ने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान विंड और सोलर पावर भी बना रहा है। फोसिल एनर्जी में कमी और क्लीन एनर्जी में इजाफा आहिस्ता आहिस्ता तवाज़ुन को पहुंच गया है। जैसे जैसे काबिल तजदीद तवानाई में इजाफा होता जाएगा, फोसिल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, जो पाकिस्तान को पायदार तरक्की और ग्रीन डेवलपमेंट का हदफ हासिल करने में मदद करेगी। नाज़रीन,
पाक चाइना एक्सप्रेस के मेज़बान जफ़र हुसैन चंद दिन पहले चीन के शहर लांचो गए थे। लांचो यूनिवर्सिटी के कैंपस में उन्होंने पाकिस्तान में जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आम किस्म का पौधा दरियाफ्त किया, लेकिन चीन में इसका इस्तेमाल खेल के मैदान में बिछाने के लिए किया गया है। आज के प्रोग्राम में हम चीन और पाकिस्तान के माबैन चीनी द्वीप के शोबे में ताउन पर बात करेंगे। ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी तारीख़ 112 साल पुरानी है और इस यूनिवर्सिटी में इस वक्त 700 गैर मुल्की तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि अब तक तकरीबन 40,000 के करीब जो गैर मुल्की हैं इससे तालीम हासिल करके अपने अपने ममालिक में मुख्तलिफ़ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जब उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस वक्त 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और जो मुख्तलिफ़ शोबों में तालीम हासिल कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में जो सबसे अहम चीज़ है जिस पर ये रिसर्च करते हैं वो केमिस्ट्री का शोबा है और बायो का शोबा है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी पूरी चीन में मशहूर है। और ख़ास तौर पर आज जब हमारी सुबह दो प्रोफेसर्स हजरात हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि ये जो ग्रास है इस पर तहकीक के हवाले से ये यूनिवर्सिटी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी तस्वर की जाती है। अब ये देख सकते हैं कि ये ग्रास नज़र आ रही है आपको, और आपको पूरी यूनिवर्सिटी में जगह जगह पर आपको ग्रास नज़र आएगी। यहाँ देखें इन्होंने पानी में ग्रास उगाई हुई है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये यूनिवर्सिटी ग्रास की तहकीक में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है और चाइना की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ग्रास के ऊपर तहकीक करने में। ये ग्रास पाकिस्तान में तो अक्सर जानवरों को चारा डालने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ये मुख्तलिफ़ जो चीनी रवायती अद्वियात हैं उनमें भी इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते हैं और खेलों के लिए जब खेलों में ग्राउंड में ग्रास इस्तेमाल की जाती है उसके लिए भी ये। लांचो यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ फार्मेसी न सिर्फ चीन में फार्मेसी के टैलेंट की तरबियत करता है बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे तलबा को भी राग़िब करता है जो रवायती चीनी तिब में दिलचस्पी रखते हैं। लांचो में जड़ी बूटियों की अद्वियात के पौधों के वाफर वसाइल की बुनियाद पर स्कूल की लेबार्ट्री में तलबा के मुताले और तहकीक के लिए बहुत सी चीनी जड़ी बूटियों के नमूने रखे गए हैं। इन कीमती नमूनों ने जफ़र हुसैन को मुतासर किया और उन्हें अपने आबाई मुल्क पाकिस्तान की याद दिला दी। जनूबी एशिया में वाक़ पाकिस्तान एक पेचीदा और मतनू इलाका है। पाकिस्तान का जनूबी हिस्सा ज़्यादातर सहरा है और शुमाली हिस्सा मुर्तफ़ा पोठोहार और ज़रख़ेज़ ज़मीन है। पेचीदा जोग्राफियाई हालात और बदलती आबो हवा की वजह से पाकिस्तान पौधों की मुख्तलिफ इक़साम से मालामाल है। हमने 2018 में पाकिस्तान के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया था। हमने चीन और पाकिस्तान में वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले अद्वियाती पौधों के बहुत से वसाइल देखे, जबकि कुछ जड़ी बूटियाँ पाकिस्तान के लिए मखसूस हैं जो चीन में दस्तयाब नहीं हैं। अद्वियाती पौधों के हवाले से किए गए कौमी सतह के 4 सर्वे के बाद हमें चीन में 12,800 अद्वियाती पौधों का पता चला, जबकि पाकिस्तान में 700 से 800 अद्वियाती पौधे हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा अद्वियाती पौधे ऐसे हैं जो हमारे पास नहीं हैं। रवायती अद्वियात पाकिस्तान के सकाफती वर्से का एक अहम हिस्सा हैं। यहाँ आम लोग, ख़ास तौर पर वो लोग जो दूर दराज और कम तरक्की याफ्ता इलाकों में रहते हैं, वो खुद ही बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियाँ जमा करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे हुए और जड़ी बूटियों के इल्म और तजर्बे एक दूसरे से शेयर किए। चीन में रवायती चीनी तिब की एक तवील तारीख है और ये 4 कौमी ख़जानों में से एक है। अगरचे दोनों ममालिक अद्वियाती पौधों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल के हवाले से चीन और पाकिस्तान में काफ़ी फ़र्क है। पाकिस्तान में पौधों के पत्ते, फूल, फल और बीज अक्सर दमा, जिल्द की बीमारियों और पेचश जैसी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। चीन में पौधों की जड़ें और छाल बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बहुत सी जड़ी बूटियाँ खून साफ़ करने की सलाहियत रखती हैं, जो मुस्तकबिल में अमराज़ कल्ब के इलाज के लिए अद्वियात तैयार करने का एक अच्छा वसीला फराहम करती हैं। पाकिस्तान की रवायती अद्वियात जो अब भी सुस्त तरक्की कर रही हैं, उनके मुकाबले में चीन ने आला दर्जे की दवाइयों की जड़ी बूटियों की मयारी काश्त, प्रोसेसिंग और निकालने, दवासाजी के कारोबार और रसद दोनों में निस्बतन मुकम्मल सनत तैयार की है। 1970 की दहाई के अवाइल में पाकिस्तानी हुकूमत ने आक्यूपंक्चर और दीगर रवायती चीनी तिब इलाज सीखने के लिए डॉक्टर्स चीन भेजे।
لوگ یہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کا موازنہ مغربی ادویات سے کیا جاتا ہے۔ روایتی دوا سے علاج کے مضر اثرات کم ہوتے ہیں یا بالکل نہیں ہوتے، یا کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس کا کلینکل ٹرائل اور مختلف کلینکل ٹرائلز کی طرح جیسا کہ روایتی دوا کے ذریعے دائمی برونکائٹس ٹریٹمنٹ بھی پاکستان میں شروع کیا گیا تھا۔ زیادہ تر ممالک میں جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ادویات ایک تکمیلی اور متبادل پوزیشن میں ہیں، لیکن ٹی سی ایم کو بیماریوں، کثرت سے ہونے والی بیماریوں، دائمی بیماریوں اور بڑی بیماریوں کی روک تھام اور علاج میں اپنے علاج معالجے اور کردار کی وجہ سے بین الاقوامی برادری کی طرف سے تیزی سے تسلیم اور قبول کیا جاتا ہے۔ اس وقت ٹی سی ایم 183 ممالک اور خطوں میں پھیل چکی ہیں، اور چین نے غیر ملکی حکومتوں، علاقائی حکام اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ ٹی سی ایم پر 86 تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کی جڑی بوٹیوں کی دوائیں بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہیں اور انہیں فوری طور پر صنعتی اور کاروباری بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم ادویاتی جڑی بوٹیوں کو نکالنے اور علیحدہ کرنے کی ٹیکنالوجی کو پاکستان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ تر روایتی چینی جڑی بوٹیوں کی کاشت مصنوعی طریقے سے کی جاتی ہے۔ ہم کاشتکاری کی تکنیک بھی پاکستان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ حکومتی سطح کا تعاون کیا جا رہا ہے۔ عوامی تعاون کے لیے زیادہ سے زیادہ عوام کی ضرورت ہے، اور حکومتی اور عوامی نجی شراکت داری ہو سکتی ہے جو چین اور پاکستان کے مابین ممکن ہے، ایک بڑی ضرورت ہے، اور مستقبل میں اس طرح کے اور بھی ادارے ہوں گے۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ دو ماہرین براہ راست موجود ہیں۔ وہ ہیں پاکستانی سائنسدان، پاکستان کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر اور چینی اکیڈمی آف سائنسز کے فورن ایکڈیمشین ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، اور پروفیسر چھنگ سیجونگ صاحب جو کہ چین کی ساؤتھ ویسٹ یونیورسٹی آف پولیٹیکل سائنس اینڈ لا میں وزٹنگ پروفیسر ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں چینی روایتی طب اور پاکستان کی روایتی طب ایک دوسرے سے کیا سیکھ سکتی ہیں؟ چینی جو ٹریڈیشنل میڈیسن ہے، جو طب ہے، اس میں خاص سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہزاروں سال سے استعمال ہوتا رہا ہے، اور یہ صرف چائنیز ڈاکٹرز ہی کی حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ چائنا میں ایک انٹیگریٹڈ سسٹم، ایک ایسا سسٹم جس میں ماڈرن میڈیسن، اور یہی طریقہ کار پاکستان میں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے اپنے جو میڈیسن ہے، جو یونانی عرب میڈیسن ہے ہمارے ہاں، اس کو بھی ہم انہی لائنز پر ہم آگے تحقیق کریں اور ہموار کریں، جیسے کہ چین نے کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں چائنا میں بہت ساری اب ایسی ادویات موجود ہیں۔ عطاء الرحمان صاحب، ہماری معلومات کے مطابق پاکستان ٹی سی ایم ہسپتال تعمیر کر رہا ہے۔ پاکستان میں ٹی سی ایم کے فروغ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو پیشنٹس کو جو ضرورت ہوتی ہے، اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک باقاعدہ ایک ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کا ہاسپٹل بھی قائم ہو، کلینک قائم ہو، جو کہ چائنیز ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر قائم کی جائے، اور اس پہ اب تیزی سے کام چل رہا ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کا ہسپتال باقاعدہ انشاءاللہ کراچی میں قائم ہوگا۔ میں نے مشورہ دیا کہ ہم چین میں ایک پاکستانی روایتی ادویات کا ادارہ قائم کرتے ہیں، یوں پاکستان میں ٹی سی ایم ہسپتال، جبکہ چین میں پاکستانی روایتی ادویات کے ادارے ہوں گے۔ اس طرح چین اور پاکستان ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیں گے تاکہ بہتر سائنسی تحقیق اور تعاون کیا جا سکے۔ پاکستان نمبر 1 ریلوے کراچی اور پشاور کو ملاتی ہے، اور یہ پاکستان کی 4 سب سے اہم ریلوے لائنوں میں سے ایک ہے۔ LM1 منصوبہ سی پیک کا ایک اہم منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد ریلوے کی رفتار موجودہ رفتار سے دگنی ہو جائے گی اور ہزاروں ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ آج کے پروگرام میں ہم ML1 کی کہانی سنتے ہیں۔ جھنڈ کے قریب موسلادھار بارش کے باعث ریلوے ٹریک کو نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے 20 جولائی کو میاں والی روٹ پر اٹک اور ماری انڈس کے مابین ٹرین کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔
रेलवे हुकाम के मुताबिक बहाली के अमले ने शोहान और मसान रेलवे स्टेशन के दरमियान 6 फुट चौड़ा गड़ा देखा, जिसके बायस रेलवे हुकाम रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल करने पर मजबूर हो गए। ज़्यादातर मुसाफिरों को आधे रास्ते पर ट्रेन छोड़कर पैदल ही मरकजी सड़क पर जाकर अपनी अपनी मंजिल मकसूद के लिए बस पकड़नी पड़ी। चूंकि रेलवे लाइन पुरानी है, गाड़ी चलने के दौरान अक्सर हादसात पेश आते हैं। पिछले 2.5 बरसों में पाकिस्तानी रेलवे पर 11 के करीब हादसात रूनुमा हुए हैं, जिसके नतीजे में 150 अफराद हलाक और 200 जख्मी हुए। ML1 1872 किलोमीटर पर फैली हुई है, जो पाकिस्तानी अवाम के जहनों में लाइफ लाइन है। रेलवे का इंतहाई शुमाली इख्तितामी स्टेशन हवेलियाँ है, जो जनूब में बहर हिंद में कराची पोर्ट से जुड़ा हुआ है और इसमें गवादर पोर्ट तक फैलने के इम्कानात मौजूद हैं। ML1 के साथ 70% आबादी और शहर फैले हुए हैं और इसके साथ मुल्क की 8 रेलवे ब्यूरो लाइनें हैं, जो रेलवे ट्रैफिक का 80% है। इसकी मुआशी और माशरती अहमियत बहुत ज़्यादा है। ताहम हालिया बरसों में नकलो हमल के मुख्तलिफ तरीक़ों के माबैन मुकाबला और रास्ते पुराने होने की वजह से इस पर आमदोरफ्त का हजम मुसलसल कम होता जा रहा है। पाकिस्तान की रेलवे 1861 में तामीर की गई थी। इसकी तामीर के बाद से पाकिस्तान ने रेलवे मंसूबे में तब्दीली नहीं की। इसकी पुरानी रेलवे टेक्नोलॉजी और बोसीदा सहूलियात निस्बतन गैर महफूज हैं। इसकी रेलवे नकलो हमल की मौजूदा ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती। रेलवे की सहूलियात की बहाली के फुकदान की वजह से ख़तरात पर काबू पाने के लिए रेलवे नकलो हमल के हिफाजती मयार में बेहतरी, ऑपरेटिंग नुकसानात का खात्मा और सरमायाकारी को राग़ब करना पाकिस्तान की फौरी ज़रूरत बन चुके हैं। चाइना रेलवे अर्जुआन इंजीनियरिंग ग्रुप ML1 की मुरम्मत के प्रोजेक्ट का मरकजी शराकत दार है। इसकी सरकारी वेबसाइट के मुताबिक CREEC का क़याम 1952 में हुआ था और बुनियादी तौर पर डिज़ाइन, मुशावरत, अमूमी मुआयदा और सिस्टम का इंज़माम कारोबार के साथ ये चीन की सबसे बड़ी मल्टी इंडस्ट्री और जामे इंजीनियरिंग सर्वे एंड डिज़ाइन कारपोरेशन है। CREEC चाइना रेलवे ग्रुप लिमिटेड का बुनियादी कारोबारी इदारा है, जो 2011 में दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों में 95वें नंबर पर था। मैं 1995 में पाकिस्तान गया था। इसके बाद से 4 सालों के दौरान मैं 12 चीन और पाकिस्तान आता जाता रहा। अब 2016 के बाद 5 साल से पाकिस्तान में हूँ। सन जियांगचुन ने रिपोर्टर को बताया कि मौजूदा लाइनों की तब्दीली नए रेलवे की तामीर के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन्हें मुरम्मत और मामूल की आमदोरफ्त को इकट्ठे चलाते और हिफाजत को यकीनी बनाते हुए रेलवे की तामीर और मामूल की आमदोरफ्त दोनों को मद्देनज़र रखना होगा। आम तौर पर हम रेलवे की तामीर को मरहलावार तकसीम करते हैं। हम पहले हादसे से मुतासरा रेलवे हिस्से की मुरम्मत करेंगे। इसके अलावा पुरानी सहूलियात की वजह से पाकिस्तान में रेलवे की नकलो हमल की सलाहियत कम हो गई है, ताहम मुआशरे का तकाजा बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हम उन हिस्सों में इस्लाहात को भी तरजीह दे रहे हैं। इसी दौरान तामीर और ऑपरेशन की तफसीलात के बारे में बात करते हुए सन जियांगचुन ने तामीराती मंजर बयान किया। मजदूरों के लिए तामीराती मकाम पर हर वक्त फ़ौजी कोट पहनना लाजमी है। जो ही सड़क बंद होती है वो तामीर शुरू कर देते हैं। सैकड़ों कारकुन मुस्तैद और मुनज़्ज़म तरीके से ख़ुद को अपने काम के लिए वक्फ कर देते हैं। ट्रैक की तब्दीली का काम 3 घंटों में मुकम्मल कर सकते हैं। अपग्रेड होने के बाद मुसाफिर ट्रेनों की ऑपरेटिंग स्पीड मौजूदा 110 किलोमीटर फ़ी घंटा से 165 किलोमीटर फ़ी घंटा तक नुमाया तौर पर बढ़ा दी जाएगी और सलाहियत मौजूदा 34 वन वे से रोज़ाना 171 वन वे तक बढ़ जाएगी। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2020-2021 के मुताबिक ML1 मंसूबा पेशावर से शुमाल मगरब में रेलवे ट्रैक को कराची के जनूबी हिस्से 1872 किलोमीटर तक अपग्रेड और दोहरा कर देगा और इससे 1,74,000 बराह रास्त मुलाजमतें पैदा हो सकती हैं। नए सिरे से तैयार करदा रेलवे 165 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलेगी और पूरे निज़ाम को अपग्रेड और जदीद बनाया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक जदीद रेलवे होगी जो पाकिस्तान के जनूब से शुमाल तक जाती है। इससे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को बराह रास्त फ़रोग मिलेगा। इसके अलावा तामीराती अमल के दौरान पाकिस्तानी रेलवे के ओहदेदारों और कारकुनों को भी तरबियत दी जाएगी और इसके साथ साथ उनकी इंतज़ामी और तकनीकी सतह को भी बेहतर बनाया जाएगा।
چین کے پاس دنیا کا سب سے طویل ریلوے نیٹ ورک اور سب سے طویل تیز رفتار ریلوے موجود ہے۔ پاکستانی وفد متعدد بار چین کا دورہ کر چکا ہے۔ انہیں مکمل طور پر چین کی ریلوے ٹیکنالوجی کو سمجھانے کے لیے میں نے ان کے ساتھ چین کی تیز رفتار ریلوے اور عام ریلوے اسٹیشنوں کا دورہ کیا اور متعلقہ ٹرینوں کا تجربہ کیا۔ میں نے ان وفود کی قیادت کرتے ہوئے چائنا سگنل ٹاورز، ریل ویلڈنگ سیکشن، گرڈر میکنگ فیکٹری اور کچھ تعمیراتی مقامات کا بھی دورہ کیا۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے۔ خدا حافظ۔